Hello everybody, I welcome you all to my YouTube channel. So today we'll be discussing the part 2 of phobias. If you haven't watched the part 1, then I suggest you कि आप पहले उसको देखें and then you can continue on with this. So to watch that video, I have mentioned the link in the description box and it is also visible on the top right corner of your screen. तो वहाँ जाके पार्ट 1 एक्सेस कर सकते हैं एंड देन उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू रख सकते हैं. So without wasting much of our time, let's dive in straight into the video. तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा फियर ऑफ सी, समुद्र का डर. तो व्हाट इज़ इट नोन एज, व्हाट इज़ द फियर ऑफ सी नोन एज? इज़ इट थैलेसोफोबिया और इज़ इट गैलियोफोबिया और इज़ इट हाइड्रोफोबिया और इज़ इट बैथोफोबिया? Any guesses? So the answer to the question is thalassophobia. Thalassophobia is known as fear of sea. समुद्र का डर is known as thalassophobia. Now, what is this galeophobia then? It is fear of sharks. Shark is a type of fish, you know. So जैसे whale होती है वैसी sharks होती हैं, तो galeophobia. Hydrophobia is fear of water और wetness. सिर्फ पानी का डर होता है बहुत से लोगों को, right? And that is known as hydrophobia. Okay, so hydrophobia is fear of water या गीलापन, wetness का. Okay, then bathophobia is fear of depth और deep places, गहराई. ठीक है, किसी चीज़ की गहराई से किसी को डर होता है and that is known as bathophobia. Okay, so these were the 4 fears we discussed. Okay, fear of sea, that is thalassophobia, fear of sharks, that is galeophobia, fear of water या पानी का डर is hydrophobia and गहराई या depth का डर is bathophobia. Right? Moving to the second question of today, fear of speaking or public speaking. I guess most of us have it, right? Most of us have fear of stage, है ना, fear of speaking और पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है, किसी के बहुत सारे क्राउड है उनके सामने आके बोलना, 4 शब्द बोलने में ही हमें कितना डर लगता है, पसीने छूटने लगते हैं. एंड दैट इज़ नोन एज द फोबिया और द फियर ऑफ स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग. सो व्हाट इट इज़ नोन एज? फोनोफोबिया और डेमोफोबिया और पायरोफोबिया और ग्लोसोफोबिया. सो व्हाट इज़ द आंसर? Answer is glossophobia. The point here to remember is there is a synonym of glossophobia. तो glossophobia को कभी कभी हम लेलोफोबिया भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे टर्म. ठीक है, सो दीज टू आर सेम टर्म्स एज दे आर सिनोनिम्स. सो व्हाट इज़ द फियर ऑफ स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग नोन एज? इट्स ग्लोसोफोबिया और लेलोफोबिया. देन व्हाट इज़ फोनोफोबिया? Phonophobia is fear of noise. How you can relate it? Noise is related to phone, right? So phonophobia is for fear of noise. Demophobia. Demophobia is fear of crowds. तो डेमो का हमने वो पढ़ा था, वर्ड पावर मेड इजी में वर्ड रूट पढ़ा था, राइट? सो इट इज़ रिलेटेड टू पीपल, इट इज़ रिलेटेड टू क्राउड्स. सो डेमोफोबिया इज़ फियर ऑफ क्राउड्स, भीड़. ठीक है. पायरोफोबिया इज़ फियर ऑफ फायर. आग का डर किस को क्या बोलते हैं हम? पायरोफोबिया. ओके, so these are the 4 fears we have discussed in this slide. That is phonophobia is a fear of noise, demophobia is fear of crowds, pyrophobia is fear of fire, and what is fear of speaking or public speaking known as glossophobia or lelophobia. So this was about this one. I hope it's going interesting. Now moving to the third slide, fear of snakes, सांप का डर क्या होता है? इज इट टॉक्सिकोफोबिया, गैटोफोबिया, ऑफिडियोफोबिया और म्यूजोफोबिया? फियर ऑफ स्नेक्स इज नोन एज ऑफिडियोफोबिया. ऑफिडियोफोबिया, अगर ये प्रोनाउंस करते नहीं बने तो ये जो डैश लगा रखे मैंने वहाँ पे वेट करना है आपको. ठीक है, ऑफिडियोफोबिया. ओके, ऑफिडियोफोबिया इज फियर ऑफ स्नेक्स. Then what is toxicophobia? It is fear of poisoning. जहर का डर is toxicophobia. Then fear of cats is known as gatophobia. उस दिन हमने पढ़ा था fear of dogs, right? That was cynophobia. But what is fear of cats known as? Gatophobia. Musophobia is about fear of mice. ठीक है, चूहों का डर is musophobia. So this is all about this slide. Moving to the next slide, that is fear of streets और क्रॉसिंग स्ट्रीट्स. बहुत से लोगों को रोड क्रॉस करने का डर होता है.
दे कांट डू इट, और दे आर हैविंग एक्सेसिव फियर अबाउट इट कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, आई वोंट डू इट. सो दे हैव सो मच ऑफ फियर अबाउट इट. सो व्हाट इट इज़ नोन एज र्यूपोफोबिया, ड्रोमोफोबिया, मैलियोसियोफोबिया और गिफायरोफोबिया. See, these two are very difficult to pronounce, I guess, for you, right? बट ये जो डैश लगा रखे हैं उसके थ्रू पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा. मेलियोसियोफोबिया, गिफायरोफोबिया. ठीक है, कोई मुझे भी ऐसे बोल दे ना बिना डैश के, तो आई विल बी लाइक 1 minute वेट, लिखा क्या है, राइट? सो इसलिए मैंने यहाँ पे डैश लगाए हैं. सो मे बी इट इज़ नाउ ईजी फॉर यू. ओके, सो व्हाट इज़ फियर ऑफ स्ट्रीट्स नोन एज? आंसर इज ड्रोमोफोबिया. ओके, देन व्हाट इज़ र्यूपोफोबिया मैन? इट इज़ फियर ऑफ डर्ट. ठीक है, गंदगी का जो डर होता है बहुत से लोगों को, वो होता है र्यूपोफोबिया. ओके, व्हाट इज़ मैलियोसियोफोबिया? इट इज़ फियर ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी का जो डर होता है वो है मैलियोसियोफोबिया. ठीक है, मोस्टली विमेन में ही पाया जाएगा ये, राइट? सो नेक्स्ट इज गिफायरोफोबिया एंड दैट इज़ फियर ऑफ ब्रिजेस और क्रॉसिंग ब्रिजेस. ठीक है, तो क्रॉसिंग स्ट्रीट्स और स्ट्रीट का फोबिया इज़ अलग, दैट इज़ ड्रोमोफोबिया हमने पढ़ा. बट गिफायरोफोबिया इज़ फियर ऑफ क्रॉसिंग ब्रिजेस. ठीक है, पुल, जिसको हम हिंदी में पुल बोलते हैं. ठीक है, देन मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे, दैट इज़ फियर ऑफ ट्रैवल. अब तुम लोग सोचोगे कैसा फियर है भाई? ट्रैवल ऑलमोस्ट सबको पसंद होता है. नो, सम पीपल हैव इट्स फियर, हैव इट्स फोबिया. ट्रैवल बिल्कुल करना पसंद नहीं करते हैं बिकॉज उन्हें डर लगता है. ठीक है, सो व्हाट इज इट इज़ नोन एज? इट इज़ इट होडोफोबिया? इज इट सिडेरोड्रोमोफोबिया? Is it tachophobia or it is topophobia? Again a difficult word, that is siderodromophobia. अलग अलग करके पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, सो द आंसर टू दिस इज होडोफोबिया. फियर ऑफ ट्रैवल और या घूमने फिरने का डर इज होडोफोबिया. ठीक है, देन व्हाट इज दिस सिडेरोड्रोमोफोबिया? फियर ऑफ ट्रेन्स, रेल का डर, ट्रेन्स का डर इज सिडेरोड्रोमोफोबिया. टैकोफोबिया इज फियर ऑफ स्पीड एंड टोपोफोबिया इज़ फियर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, रफ्तार या स्पीड का डर, बहुत तेज़ कोई गाड़ी चला रहा है तो उसका डर लगता है. ठीक है, तो टैकोफोबिया. कोई चीज़ बहुत तेज़ से आ रही है उसका डर लगता है, दैट इज़ टैकोफोबिया. ठीक है, फियर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर जगह, उस जगह में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ से डर लगता है. ठीक है, वहाँ का डर लग है, वहाँ में जाते हो तो मुझे बहुत डर लगता है. दैट इज़ ऑल टोपोफोबिया. कोई एक पर्टिकुलर प्लेस, वो पर्टिकुलर प्लेस कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट टुडे. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड येस, हैप्पी लर्निंग. एंड उसके पहले मैं बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक्ड इट फॉर मोर सच कंटेंट, and even press the bell icon to get notified about my latest videos. See you in the next video. Till then, happy learning, stay safe, stay happy. Bye.